हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शंकर सिंह सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं सोलंकी सर की इंग्लिश की क्लास में। बीए पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर फर्स्ट बुक 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। आज का हमारा चैप्टर है सेकंड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर.के. नारायण। So let us start with the English summary. The astrologer opened his bag at noon and spread out his things before him. These consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with strange mystic charts on it, a notebook and bundle of Palmyra writings. The astrologer carried on his business by the light of nearby gas lamps. He was an ignorant person and knew nothing about astrology. He had no intention to be an astrologer when he came from village. He had, however, mastered by now the art of saying pleasing things to his customers. He had left his village suddenly. If he had stayed at home, he would have adopted the profession of agriculture. He had cleverly come to conclusion that mankind's general trouble arises from marriage, money and complications created by human relationship. Within 5 minutes, he could guess what his client want to ask and want to listen. He charged 3 pice per question. He never opened his mouth till his client had spoken for at least 10 minutes. He told his clients things which they like to believe. ज्योतिषी ने दोपहर को अपना सामान का थैला खोला और उसमें से अपनी चीज़ें निकालकर सामने फैला दी। उसके सामान में दर्जन भर कौड़ियाँ थीं, एक चौकोर कपड़ा जिस पर रेखाएं और आकृतियाँ बनी हुई थी। उसके पास एक नोटबुक थी, एक ताड़पत्र लिखा हुआ था और उसके मस्तक पर भभूत और सिंदूर लगा था। उसके चेहरे पे चमक थी। वो एक पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठता था और वो पेड़ उस मार्ग पर था जो टाउन हॉल के बीच से होकर गुजरता था। यह एक भीड़ भाड़ वाला स्थान था। उस स्थान में कुछ फेरी वाले भी अपना सामान बेचते थे। फेरी वाले सभी प्रकार के थे। उनमें से कुछ औषधियाँ बेचते थे, कुछ चोरी का सामान तथा कुछ कपड़ा बेचते थे और अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शोर मचाया करते थे। भुनी मूंगफली विक्रेता अपने माल को प्रतिदिन एक नए आकर्षक नाम से पुकारा करता था। ज्योतिषी अपना कार्य आसपास के प्रकाश में किया करता था। उसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। जब वह गांव से आया था तो उसका ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं था। उसने अब तक अपने ग्राहकों को अच्छी अच्छी बातें बनाने की कला में दक्षता ग्रहण कर ली थी। उसने अपना गांव अचानक छोड़ा था। यदि वो गांव नहीं छोड़ता तो वो खेतीबाड़ी करता। वो बड़ी चतुराई से इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मानवों की अधिकांश परेशानियां विवाह, धन आदि मानव संबंधों की जटिलताओं से होती हैं। वो 5 मिनट तक अनुमान लगा लेता था कि ग्राहक क्या सुनना चाहता है। बिना कुछ बोले वो लगभग 10 मिनट तक ग्राहक की बात को ध्यान से सुनता था और वो अंदाज़ा लगा जाता था कि ग्राहक को क्या बोलना है और ये ग्राहक उसकी बात सुनकर विश्वास कर लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। One evening as the astrologer was collecting his things to go home, a stranger appeared on the scene. The astrologer, taking the stranger to be a client, told him that he looked worried. The stranger asked the astrologer to tell something really true. When the astrologer informed the stranger that former charged 3 pice for a question, the latter threw an anna to him. He said that if the astrologer told a lie, he would give to return anna with interest. The astrologer told the 5 rupees to him. The stranger did not agree.
The astrologer reduced the sum of 8 annas. The stranger agreed on the condition that if, when the astrologer saw the face of a stranger in the match light, he felt very uncomfortable. He decided to return Anna to the stranger and refused to see his hand. The stranger held the astrologer by the wrist. He threatened to detain him till he answered his questions. In beginning, the astrologer tried to get rid of him, but on insisting by a stranger, he was forced to accept the challenge. The stranger wanted the astrologer to answer one question only. The question was whether he would succeed in his present search for not. The astrologer agreed to tell him the answer on the condition that the stranger would pay him 1 rupee if his answer was correct. The stranger agreed. एक शाम जब ज्योतिषी अपने घर जाने ही वाला था कि एक अजनबी उसके पास आया। ज्योतिषी से उसने ज्योतिषी को अपने को ग्राहक बताकर यह बताने लगा कि वो परेशान है। अजनबी ने ज्योतिषी से कहा कि उसे कोई वास्तविक सच्ची बात बताए। जब ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह एक प्रश्न पूछने का 3 पैसा लेता है, तो उसने ज्योतिषी के सामने इकन्नी फेंक दी और कहा कि यदि उसने झूठ बोला तो उसे ब्याज सहित इकन्नी वापस करनी पड़ेगी। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि यदि अजनबी को उसके उत्तर संतोषजनक लगे तो अजनबी को उसे 5 रुपये देने होंगे। अजनबी इस पर सहमत नहीं हुआ। अंततः सौदा यह हुआ कि संतोषजनक उत्तर मिलने पर अजनबी ज्योतिषी को 8 आना देगा और यदि ज्योतिषी गलत हुआ तो उसे 1 रुपया देगा। परंतु जब माचिस की तीली के प्रकाश में ज्योतिषी ने अजनबी का चेहरा देखा तो उसे परेशानी का अनुभव हुआ। उसने अजनबी को 1 आना वापस करना चाहा, परंतु अजनबी ने उसकी कलाई पकड़ ली और धमकी दी, जब तक उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा वो उसे घर नहीं जाने देगा। पहले तो ज्योतिषी ने अजनबी से पीछा छुड़ाना चाहा, पर अजनबी के बहुत जोर देने पर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गया। The astrologer told him that once the stranger had faced a murderous assault and had been left for dead. The stranger admitted that it was true. The astrologer further told him that the stranger was attacked with a knife. The astrologer admitted that it was also true and showed him a scar on his chest. The astrologer told him that he was pushed into a well and was left for dead. The stranger informed the astrologer that the former had been rescued by a passerby from the well. The astrologer told him that his enemy was dead. He had died 4 months back in a distant town. The astrologer named the stranger as Guru Nayak. The stranger was astonished. The astrologer advised him to go back to his village as he saw that his life was again in danger, and gave a pinch of ash to the stranger and asked him to rub it on his forehead and go home. He added that the stranger should never travel southward again. The stranger told him that formerly he was not willing to go home as he wanted to look for his enemy and kill him. But now, as his enemy was already dead, so he would go back to his village. अजनबी केवल एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था कि वो अपनी वर्तमान खोज में सफल होगा कि नहीं। ज्योतिषी उसे इस शर्त पर उत्तर देने के लिए तैयार हुआ कि यदि उसका उत्तर सही हुआ
तो अजनबी उसे 1 रुपया देगा। अजनबी इस पर सहमत हो गया। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उस पर चाकू से प्राणघातक आक्रमण किया गया था और उसे मरने के लिए कुएं में फेंक दिया गया। अजनबी ने इसे स्वीकार किया और चाकू के जख्म का निशान दिखाया और बताया कि उसे एक राहगीर ने बचाया था। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका शत्रु एक दूर नगर में लारी के नीचे आकर 4 माह पहले मर चुका है। इस पर अजनबी प्रसन्न हो गया। ज्योतिषी ने कहा कि वो अपने गांव वापस जा सकता है और दक्षिण दिशा की ओर कभी यात्रा न करे, क्योंकि इस दिशा में इसकी जान को खतरा है। और उसने अजनबी को बताया कि अजनबी का नाम गुरु नायक है। इस पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने गांव वापस लौट गया। लास्ट पैराग्राफ है, द स्ट्रेंजर डिपार्टेड एंड द एस्ट्रोलॉजर रिटर्न होम एट अबाउट मिडनाइट। हिज वाइफ डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। ही गेव द coins to her that was paid by stranger. She counted it and informed that they amount to 12.5 annas. The astrologer cursed the stranger and said that he had promised me to pay 1 rupee. He looked worried. After taking his dinner, he told his wife that he was feeling very happy to know that he was not a murderer. He further informed his wife that he was the man who had made a murderous assault on the stranger and left him for dead. He was glad that the stranger was alive. After telling entire story, he went to sleep peacefully. ज्योतिषी आधी रात के पश्चात घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को देर से आने का कारण बताया। ज्योतिषी ने अजनबी द्वारा दिए गए सारे सिक्के पत्नी को सौंप दिए, जिन्हें गिनकर उसने बताया कि ये 12.5 आना है। इस पर ज्योतिषी ने अजनबी को कोसा, क्योंकि उसने 1 रुपया देने का वादा किया था। रात को उस ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो अजनबी व्यक्ति अभी जीवित है, इसलिए उसका वो हत्यारा नहीं है। पूछने पर उसने पत्नी को पूरी कथा सुनाई और उसके बाद सोने के लिए चला गया। दोस्तों, तो ये हमारी कहानी थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसमें आपने देखा कि एक ज्योतिषी किस तरह से गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और एक अजनबी द्वारा पूछे जाने पर उसके भविष्य के बारे में उसे बता देता है, जो कि सच्चाई ये थी कि उस अजनबी का कत्ल करने वाला भी वही ज्योतिषी होता है जिसे वो ज्योतिषी समझ रहा था, वो सच में उसका किलर होता है, हत्यारा होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए। नोट कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर नो एवरीथिंग अबाउट गुरु नायक। इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, हाउ वॉज द एस्ट्रोलॉजर एबल टू कन्विंस हिज क्लाइंट दैट हिज सर्च वॉज फ्यूटाइल एंड दैट ही शुड गिव इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, what made the astrologer run away from his village। next question note कर लीजिए, how did the astrologers analyze mankind's problem। इस क्वेश्चन को हम और दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, how did the astrologer deal with his customers। सेक्शन बी की हम बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमारा सेक्शन ए है, हो जाता है पूरा इस समय। अब सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर सेट एंड ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट पर्टिकुलर पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क।
इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर कैरी आउट हिज बिजनेस, हाउ वॉज दिस लोकेशन सूटेड टू हिज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी का शॉर्ट में ही, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर टेक अप हिज पर्टिकुलर प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसमें, इवेल्युएट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसी को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, रिफरिंग क्लोजली टू इवेंट्स ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, डिस्कस हाउ चांस एंड कोइंसिडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेस्टिनीज ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नरेट इन योर ओन वर्ड्स द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। एक क्वेश्चन और एक लास्ट इसका देख लीजिए, डिस्क्राइब एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर एज पोर्ट्रेड बाय R.K. नारायण इन द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर चैप्टर 2 का, हमने डिस्कस किया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। YouTube में जाकर उसके सर्चिंग बॉक्स में हम लिखेंगे इंग्लिश गुरु भाई सोलंकी सर या SS सोलंकी, आपको चैनल मिलेगा। उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को पढ़ने के लिए इस कंटेंट को प्रमोट करिए।